Our today's topic of discussion is first law of thermodynamics. The study under thermodynamics consists of three main laws, that is first law, second law and third law of thermodynamics. The first and the very important law under thermodynamics is first law of thermodynamics. So it is simply the law of conservation of energy, which means energy can neither be created nor destroyed. It may transfer from one form to another. It means रजे की जिहड़ी एनर्जी हुंदी है उसनूं आपां कदे भी बना नहीं सकते, मीनस नवीं जिहड़ी एनर्जी उहनूं आपां जनरेट नहीं कर सकते और ना ही आपां एनर्जी नूं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मीनस खत्म कर सकते हैं। एनर्जी नूं आपां उसदे एक फॉर्म चों दूसरी फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल chemical energy may be converted into electrical energy or electrical energy may be converted into chemical energy. There are so many examples under this. For example, working of fan, lightning of bulb. In these processes, there is always a transfer of energy from its one form to another form. Or we can say the total energy of isolated system. Isolated system ਦੇ ਵਿੱਚ system plus surrounding दोनों आ जाएंगे. So the total energy of isolated system, it must remain constant, although it may undergo transformation of energy from system to surrounding, but ਜਿਹੜੀ total energy ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ always constant ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. Another definition of first law of thermodynamics is that whenever a certain amount of energy of one form is consumed, consume ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है energy ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ consume ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਜੇ ਕਿ ਅਗਰ certain amount of energy ਇੱਕ form ਦੀ energy, for example chemical energy ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ chemical energy ਨੂੰ consume ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ chemical energy ਆਪਾਂ consume ਕੀਤੀ and exactly equivalent, इथे equal नहीं लिखना है, equivalent है, equivalent amount of energy of some other form must be produced. For example, अगर अपने को electrical energy है, अगर आप electrical energy जिहड़ी है consume कर रहे हैं तो उन्नी ही amount दी जिहड़ी है chemical energy हो की हो चुकी produce हो चुकी. It means कि अगर एक टाइप दी एनर्जी है, इट मे बी इलेक्ट्रिकल, इट मे बी केमिकल, इट मे बी मैकेनिकल एनर्जी, तो जिन्नी एनर्जी कंज्यूम होगी उन्नी ही अमाउंट दी एनर्जी अदर फॉर्म वाली की हो चुकी प्रोड्यूस हो चुकी. एंड द लास्ट डेफिनेशन इज इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन. What is perpetual motion machine? It is that machine which can produce work continuously without consuming energy. So जी first law of thermodynamics के according ਆਪਾਂ कोई इदां दी machine नहीं बना सकते जिहड़ी machine की करे continuously जिहड़ा work produce करे without consuming energy. हुण तुसीं अपने ते लगा लो, human being की ने काम करदे ने, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, food ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ठीक है, they consume energy in form of food, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. for example ਲਓ ਇਸ ਦੀ कोई भी रजी व्हीकल चलता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਆਪਾਂ फ्यूल पाने ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ वर्क करदा. ਅੱਜ तक कोई भी इदां दी मशीन नहीं बनी ਜਿਹੜੀ लगातार काम करी जावे एनर्जी प्रोड्यूस तो बिना, एनर्जी कंज्यूमिंग तो बिना. कंप्यूटर भी काम करता है बट ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ इलैक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए है. सो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच टाइप ऑफ मशीन. सो ਇਹ ਸੀਗਾ फर्स्ट लॉ ਦੀ ਜਿਹੜੀ मेन ਜਿਹੜੀਆਂ डेफिनेशंस ने, ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. Next we are talking about corollary of first law of thermodynamics. It means first law of thermodynamics तो अपन की consequence की result मिल रहा है. So there is equivalence of heat and mechanical work. Equivalence of heat and mechanical work ਦਾ ਜਿਹੜਾ concept है that is given by the scientist Joule in 1840 to 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਦੇ. ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੌਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਕ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹੀਟ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕੁਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਓਨਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਜਸਟ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਫॉर एग्जाम्पल की तरह जे क्यू अमाउंट ऑफ जी हीट है वो कन्वर्ट हो रही है वर्क दे विच, उस तो बाद है जिहड़ा वर्क है वो फिर दोबारा हीट दे विच प्रोड्यूस्ड हो रहा, जिहड़ी हीट प्रोड्यूस होगी वो किहदे इक्विवेलेंट होगी, क्यू डैश जूल दे। मीनस की आ हीट कन्वर्ट हो रही है पहला वर्क दे विच, फिर जिहड़ा वर्क है वो कन्वर्ट हो रहा हीट दे विच। इत्थे क्यू अमाउंट है, इत्थे क्यू डैश अमाउंट है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੋ ਇਕੁਇਲੈਂਸ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ Q ਤੇ Q ਡੈਸ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਊਗੀ Q ਡੈਸ਼ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, Q ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ Q ਡੈਸ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ। Q ਡੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। सो इत्थों कंक्लूजन की निकल रहा कि इस दे अकॉर्डिंग हीट एनर्जी की है कॉन्टीन्यूसली की हो रही है, जनरेट हो रही है। हुण देखो अगर हीट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली जनरेट होगी, ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब तो यही निकल रहा ना कि आप एक परपेचुअल मोशन मशीन है जी वो बना सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन। सो इसका मतलब की रहे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਹੂਗਾ ਹੀਟ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜ਼ੂਲਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਮਾਸ डिस्ट्रॉयड दी, ठीक है। मीन्स अगर एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है वो ताही प्रोड्यूस्ड होगी अगर इक्विवेलेंट अमाउंट का जिहड़ा मास है वो की होवे, डिस्ट्रॉय होवे। सो इथों थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की एक होर डेफिनेशन भी निकलती है जी। डेफिनेशन एक होर की होगी, द टोटल मास एंड द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बट ये वाला जिहड़ा मास एनर्जी इक्विवेलेंस है दैट इज जनरली एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर रिएक्शंस, बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस दे विच जे मास दी इन्वॉल्वमेंट हुंदी है। जनरली जिहड़ियां अपनी कैमिकल रिएक्शंस ने उत्थे मास दी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुंदी। सो जिहड़ा मास एनर्जी वाला कंसैप्ट है ये यूजली न्यूक्लियर रिएक्शंस के उपर की हुंदा, एप्लीकेबल हुंदा। इस तो बाद आपां पढ़ रहे हां मैथमेटिकल expression or mathematically formula for first law of thermodynamics। so first law of thermodynamics ਦਾ ਜਿਹੜਾ main mathematical expression ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। so ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ internal energy ਹੈ which is represented by capital U। so internal energy ਨੂੰ ਆਪਾਂ increase ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ by two ways। मीनस दो मैथड्स दे नाल जिहड़ी इंटरनल एनर्जी ऑफ इंक्रीज हो सकती है। फर्स्ट मैथड की है, फर्स्ट की होगा राजे दसो जी, तुसी पढ़िया सी ना हीट सॉरी एनर्जी दियां कल दो टाइप्स पढ़िया सीगियां, एक तां हीट पढ़ी सी, एक की पढ़िया सी वर्क। सो इंटरनल एनर्जी नूं आपां इंक्रीज कर सकते हैं बाय या तां की होगा वो हीट जिहड़ा वो की कर ले अब्जॉर्ब कर ले, या फिर तुसी लिख सकते हो by supplying heat to the system, और या फिर by doing work on system। so इत्थे की लिखांगे आपां by supplying heat और या फिर heat absorb। सो अगर आपां हीट सप्लाई कर रहे हैं तो सिस्टम के उपर वर्क कर रहे हैं, दोनों केसेस दे विच ही की होगा इंटरनल एनर्जी की होगी इंक्रीज होगी। तो आप अजे सपोज करते हैं कि इनिशियली की सी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैपिटल U1, उस तो बाद की होगा आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी बिकम्स कैपिटल U1 प्लस Q। Q मीन्स हीट
absorption, heat absorbed by the system. उस तो बाद की होगा रजे सेकंड आपां की ऐड करांगे if work is done on the system. अगर सिस्टम ते वर्क हो रहा ਤਾਂ ਉਹਦੀ इंटरनल एनर्जी बन जूगी U1 plus Q plus W. तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਸੀ U1 फाइनली सपोज कर लो इंटरनल एनर्जी किहड़ी होगी U2. सो U2 की वैल्यू किहदे इक्विवेलेंट होगी जी U1 plus Q plus W. हुन we can write this equation in this form and this is delta U means change in internal energy. So this is very important expression. So the change in internal energy is equal to Q plus W. This is the mathematical expression for first law of thermodynamics. तो इन्हों तुसी रजे की लिखोगे change in internal energy is equal to heat absorbed plus work done on the system. This change in internal energy is increase in internal energy. ओके सो इस तो बाद ये वाला जो एक्सप्रैशन है अगर आप वर्क ऑफ एक्सपेंशन के लिए मतलब करना सो तुसी खुद कैलकुलेट करके देखो जी फॉर वर्क ऑफ एक्सपेंशन अगर एक्सपेंशन वाला वर्क होगा तो वो जो एक्सप्रैशन है उन्होंने आप किवें लिखांगे इफ वर्क डन इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन एक्सपेंशन के लिए वर्क डन की वैल्यू होगी PV इज इक्वल टू सॉरी W इज इक्वल टू माइनस P DV. दिस इज फॉर स्मॉल चेंज फॉर लार्ज चेंज के लिए की होगी डेल्टा U. सो इसकी वैल्यू तुसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच पुट कर दो. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दिस. Put the value of work done from equation first into this first law of equation. It becomes this. So from this Q is equal to delta U plus P delta V. So this is the final equation for first law of thermodynamics. And for small change, if we want to write this equation for small changes, then we can write delta Q because it is path function. It is equal to dQ plus P dV. This is the final expression for first law of thermodynamics for small changes in the system. So now applying some condition we can modify this expression for first law of thermodynamics. So first है रजे अगर थोड़े को cyclic system है cyclic system दी की definition हुंदी है cyclic system दे लिए delta U means change in internal energy दी value की होगी 0 होगी. So put the value of delta Q is equal to 0 in equation second. For cyclic process दे लिए Q दी value आ जाएगी P delta V. ये जो एक्सप्रैशन है ये मॉडिफाई करता आपां फॉर साइक्लिक प्रोसैस दे लिए. हुण उस तो बाद जो तुसी यही वाली इक्वेशन को डिराइव करो किदे लिए डिराइव करो फॉर एनी प्रोसैस इन विच वर्क इज सॉरी वॉल्यूम इज कांस्टेंट. इफ वी कैरिड आउट अ प्रोसैस इन विच वॉल्यूम remains constant. So अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इट मींस V1 V2 दी वैल्यू कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम दी वैल्यू 0 हो जाएगी. सो इस वाली इक्वेशन तो Q दी वैल्यू इक्वल हो जाएगी डेल्टा U दी. ठीक है जी. उस तो बाद तुसी अगर एक सेकंड ओ वाला प्रोसेस ले रहे हो जिस दे विच की होगा pressure दी वैल्यू कांस्टेंट है. इफ वी कैरिड आउट अ प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट throughout the process ओवर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ ਰੇ सॉरी ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਹੈਗਾ.
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? those processes in which heat remains constant, so Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ? 0। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ? 0 is equal to delta U plus ਵਰਕ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਰਕ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? delta U is equal to minus W. This is the final expression for adiabatic process. I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਡੈਲਟਾ U is equal to Q plus W। ਹੁਣ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ। this is equal to this। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ this is equal to this, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫॉर ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ this is your final expression। After this we are going to discuss about internal energy। So what is internal energy? Internal energy ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ। it never depends upon the path of a system। और internal energy is the energy of a system। internal energy is the energy of a system possesses because of its temperature, pressure, volume and chemical composition। सो कोई भी सिस्टम है उसदे विच इंटरनल एनर्जी वो मतलब पोजेस करूगा। मीनस किसी भी सिस्टम की जिहड़ी इंटरनल एनर्जी होगी वो किस करके होगी रजे? उस सिस्टम के जिहड़े ए वाले जिहड़े वेरिएबल्स ने टैंपरेचर, प्रैशर, वॉल्यूम एंड कैमिकल कंपोजिशन। सो इन्ना करके जिहड़ा उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी। एंड इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U। सो इंटरनल एनर्जी अपनी डिपेंड करूगी किन्ना ते डिपेंड करूगी? मैं हुणी दस के हटी हां, टैंपरेचर, प्रैशर, ये सारे की सीगे? डिपेंड्स अपॉन दी थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम, या फिर ये सारे की ने? स्टेट वेरिएबल ने। सो बेसिक कंक्लूजन ये है कि इंटरनल एनर्जी की है? इंटरनल एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। सो हुण आप इस चीज नूं समझना रजे कि जिहड़ा इंटरनल एनर्जी है वो है पाथ फंक्शन। इसनूं समझण दे लई आपां की कर रहे हैं? एक फिगर दी जिहड़ी हेल्प ले रहे हैं, ठीक है? सो आपां की कर रहे हैं? एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। मीन्स वी आर गोइंग टू draw a graph। on its x-axis we are going to take volume and on y-axis pressure। सो इत्थे सपोज कर लो इहदी जिहड़ी स्टेट है B है, ए की है? A है। मीनस A तो जिहड़ा है प्रोसैस तो जा रहा है टुवर्ड्स B, देन B तो वापस जा रहा है A। तो आ वाला जिहड़ा पाथ है दैट इज फर्स्ट पाथ एंड दिस इज सेकंड पाथ। सो तुसीं सपोज करना कि जिहड़ा A है इनिशियल स्टेट, इत्थे उहदा प्रैशर, वॉल्यूम ते टैंपरेचर की है? इस पर्टिकुलर पॉइंट ते इन्हां दी वैल्यू की होगी? फिक्स्ड होगी।
उस तो बाद है जी प्रैशर वॉल्यूम एंड टैंपरेचर की वैल्यू जी चेंज हो रही है इन सच अ वे दैट सिस्टम इज ब्रॉट टू पॉइंट बी। ठीक है, सो ये पाथ फर्स्ट हो गया। उस तो बाद है वापस तो जो बी तो आप ए सिस्टम पे आ रहे हैं, मीनस एक कंप्लीट जो एक प्रोसैस हो रहा। हुण तुसीं सपोज कर लेना suppose delta U, which is change in internal energy in path first, is greater than change in internal energy in path 2. सो रजे हुण आपां की कर रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मीनस इत्थे जिहड़ी डेल्टा यू की वैल्यू होगी इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड इत्थे जिहड़ी इंटरनल एनर्जी होगी इन गोइंग फ्रॉम पाथ बी टू ए। इन्हां दे विच डिफरेंस है, पाथ ए दी लई इंटरनल एनर्जी चेंज की हो रहा ज़्यादा हो रहा। इहदा मतलब इत्थों आपां नूं फाइनल की कंक्लूजन निकल रहा कि सम एनर्जी इज क्रिएटेड। ठीक है, बट is it possible that some energy is created? So this statement is again against the first law of thermodynamics. सो जी तो ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਤੇ ਹੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ कैन नॉट बी इक्वल मान के चले सी। तो उस तो बाद जो कंक्लूजन आ रहा सी तो उत्थे अपने को कुछ जी एनर्जी हो रही सी क्रिएट हो रही सी, बट दैट इज अगेंस्ट दी मतलब अगेंस्ट दी लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो इत्थे भी सेम ही है, ये जस्ट तुहानूं समझण दे लई इन्हां ने एक प्रोसैस ड्रॉ किया कि ए तो आप बी तक चले, फिर बी तो ए तक चले, ए वाला पाथ फर्स्ट हो गया जी, ए वाला पाथ की हो गया सेकेंड हो गया। तो उन्होंने मान के चल रहा है कि जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ ए च होगी वो हमेशा की होगी ग्रेटर होगी, हमेशा नहीं, दिस इज जस्ट अजम्पशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो हुण एनर्जी दी अमाउंट कुछ वध रही है, मतलब कुछ एनर्जी की होगी क्रिएट होगी। सो रजे की हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट हो गया। सो इत्थों आपां नूं की कंक्लूजन निकल रहा कि डेल्टा यू हैगा जिहड़ा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओहदी किहदे इक्वल है जिहड़ी म्यू बी, मीनस की आ फाइनल स्टेट ते इनिशियल स्टेट। मीनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो किस ते डिपेंड कर रहा, फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। सो कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक which I am going to discuss with you is only that the change in internal energy is always depends upon the states of the system. For initial and final, it never depends upon the path of the system. इस तो बाद दो कंक्लूजन ने वो लिख लो जी, जो डेल्टा यू आ मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ, as we discussed earlier that it is an extensive property which depends upon the quantity of matter. उस तो बाद है स्पेसिफिक केस ले रहे हैं आइडियल गैसेस दे लिए। आइडियल गैसेस दे लिए जो की होगा डेल्टा यू दी वैल्यू की होगी 0 होगी फॉर एक specific process which is isothermal process। ठीक है जी, सो isothermal process दे लिए की होगा इंटरनल एनर्जी चेंज दी जिहड़ी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज बिकॉज तुसीं जे फर्स्ट ईयर दे विच फिजिकल केमिस्ट्री दे विच पढ़िया होगा आइडियल गैस दे विच जिहड़ी ओहदी इंटरनल एनर्जी आ दैट इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेंपरेचर। सो इंटरनल एनर्जी फंक्शन होगा टेंपरेचर का एंड वी आर टेकिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मीन्स की टेंपरेचर कांस्टेंट, अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी की हो जाएगी कांस्टेंट, एंड अगर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू की होगी कांस्टेंट होगी देन डेल्टा यू की वैल्यू की तो इक्वल हो जाएगी 0 दी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क एंड हीट। सो वर्क is the path function which always depends upon the path of process and it does not depends upon the initial and final states of the system।
सो हुण इंटरनल एनर्जी दे टोटली रिवर्स हैगा वर्क वाला जिहड़ा कंसैप्ट। सो वर्क दे विच जिहड़ा है इहदी वैल्यू आ वो डिपेंड करूगी पाथ ऑफ अ सिस्टम। सो वर्क की होगा एक पाथ फंक्शन होगी। सो इनू भी रजे सेम वही ग्राफिकल मैथड दे नाल इन्हां ने जिहड़ा एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। फॉर एग्जाम्पल अपने को दो जड़ियां ने वो स्टेट्स ने ए तो बी, इधर की ला लो जी प्रेशर, इधर की ला लो टेम्परेचर। सेम है ए टू बी, सेम है ए टू बी। मीनस अपने को इनिशियल ते फाइनल स्टेट्स दे विच कोई चेंज नहीं है। जिथे ए इधर है सेम ते ही ए इस साइड होगी। मीनस इनिशियल ते फाइनल स्टेट्स इन्हां दे विच की ने सेम है। हुण इह प्रोसैस नूं होण दे लई जिहड़ा ए वाला पाथ भी हो सकदा, सेकंड पाथ की हो सकदा दिस वन, एंड द लास्ट पाथ मे बी दिस। समझ रहे हो ना राजे तुसीं? अपना प्रोसैस हो रहा है ए टू बी, इहदे अपने कोल तीन पॉसिबल जिहड़े पाथ्स ने। हुण जदों आपां वर्क पढ़दे आ तां वर्क ऑफ एक्सपेंशन, सपोज कर लो आपां वर्क ऑफ एक्सपेंशन मीनस माइनस डबल्यू की वैल्यू किहदे कोल आउंदी आ प्रैशर इनटू डेल्टा वी। तां इत्थे जिहड़ा प्रैशर हुंदा ओह की हुंदा एक्सटर्नल प्रैशर। मीनस की हुंदा वर्क की वैल्यू प्रैशर ते वॉल्यूम ते डिपेंड करूगी, प्रैशर ते वॉल्यूम ते डिपेंड करूगी। ठीक है, हुण ये अपने कोल कोई स्मॉल चेंजेस दे लिए हुंदा तां पीडी भी हुंदा। अगर अजे आपां टोटल वर्क डन दी वैल्यू फाइंड आउट करनी आ मीनस इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क तो किस दे इक्वल होगी? टोटल वर्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पीडीवी टर्म्स। तो जो आप सम करांगे सब दा, इहदा मतलब की होगा जिहड़ा टोटल वर्क है दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस पीवी ग्राफ। समझ रहे हो तुसी? पीवी ग्राफ दे अंदर जिन्ना भी एरिया होगा ओदी वैल्यू इक्वल होगी वर्क दे। सो इस दे अंडर ए वाला एरिया आ रहा, अगर ए वाला प्रोसेस है ए दे अंडर की होगा राजे ओनली दिस अमाउंट ऑफ एरिया, इस दे अंडर की होगा दिस होल एरिया। So the conclusion of this topic is that the amount of work done depends upon the area under these graphs, and the area in all three graphs is different. So work done is always depends upon this path carried for the process. It never depends upon these initial and final states of the system. So ये सी रजे अपना work वाला जड़ा concept है, means work दे लिए जड़ा वो एरिया तिना दे लिए डिफरेंट आ रहा है, इस करके वर्क डन दी वैल्यू की आ जाएगी डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है जी, सबनों क्लियर हो रहा ना? अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा तो मैनू पूछ सकता डाउट्स ने जिहड़े वो कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट करके। आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंग टू माई ऑन टाइम। ओके, नाउ अपने को इंटरनल एनर्जी हो गया, वर्क हो गया एंड हीट हो गया। As we already know that heat is also not a state function, it is also a path function. According to first law of thermodynamic, heat is equal to delta U minus work. ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? delta U ਕੀ ਆ? state function. But the important is that W is not a state function. Means W की आ? path function है। So इस करके रजे जड़ा Q है that will also be a path function because they हमेशा path पे depend करूँगा। ठीक है, हुण इस दे विच रजे इस तो बाद कुछ जिहड़े important concepts ने समझण दे लई वो तुसीं देखो। ये समझण वाली वैसे गल है नहीं, जिन्ना बच्चा ने मेरा पूरा लेक्चर ध्यान दे नाल सुनिया होगा उन्हां नूं ऑलरेडी ही समझ लग गया होना है ना। की पॉइंट्स ने लाइक जिहड़ा Q है W वो इंडिविजुअली आपस दे विच की ने, आपस दे विच नहीं सॉरी ये अलग अलग नहीं की ने ये पाथ फंक्शन। बट व्हेन वी ऐड these two it becomes equal to delta U, then this quantity it becomes state function। so ही important है कि Q ते W सेपरेटली की ने पाथ फंक्शन है, बट जब आप इन्हां दी एडिशन करते हैं इट बिकम्स अ स्टेट फंक्शन।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਵੇ constant if we taking that process in which volume is constant अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V is equal to 0 then according to this expression वर्क की वैल्यू की इक्वल हो जाएगी 0 दे because वर्क is equal to P डेल्टा V तो वर्क की वैल्यू की इक्वल होगी 0 दे Q plus 0 is equal to delta U हुन ये जड़ा Q है that is heat it becomes QV because we are taking volume as a constant it means delta U is equal to QV हुन ये क्या है this is a state function and it is equal to this so this also becomes equal to state function means की है जिहड़ा कल्ला Q है वो की हुंदा path function but अगर QV means heat absorbed at a constant volume then it becomes state function similarly if we are taking pressure as a constant then according to delta U is equal to Q plus W pressure constant है means delta U is equal to Q P plus work now this is a state function this is also a state function so QP means heat absorbed at constant pressure it becomes state function that's it for the day